مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور بارگاہ مسیح میں آپ سبوں کا خیر مقدم۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کلام مقدس کو سننے سے پہلے میرے عزیزوں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ وہ دو باتیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں، ان میں سے ایک یا دونوں آپ مجھے بتائیے۔ دیکھیے آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ مصیبتوں میں ہمت نہ ہارے۔ ہاللیلویا۔ کیا ٹاپک ہے؟ اونچی آواز میں بولیے ایک ساتھ، مصیبتوں میں ہمت نہ ہارے۔ ہاللیلویا، بے شک۔ تو وہ دو باتیں جو میں نے آپ سے پوچھی، بتائیے وہ دو باتیں جو انسان کو بالکل پسند نہیں۔ کوئی ہے؟ لگتا ہے آپ کو سب کچھ پسند ہے۔ وہ دو باتیں، پہلی بات ہے کہ آپ مصیبت پسند نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ مصیبت آئے۔ آپ میں کوئی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے مصیبت آئے؟ اور آپ دوسری بات، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دکھ ملے۔ کوئی ایسا ہے جو انسان دکھی ہونا چاہتا ہے؟ یہ دونوں باتیں انسان کو بالکل پسند نہیں، نہ مصیبت میں رہنا، نہ مصیبت اٹھانا، اور نہ ہی دکھ میں آنا، یہ انسان کو بالکل پسند نہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ اونچا بولا کرے جی، بتاؤں؟ تو مہربانی کیجیے کسی سے چھپائیے گا۔ اور بات کیا ہے کہ جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہو یا جن چیزوں سے آپ چاہتے نہیں ہو اور آپ کو پسند نہیں ہے، پتہ ہے وہی آپ کا حصہ ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں ایوب اور اس کا 14 باب، ایوب 14 باب، اس کے اندر لکھا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ دکھوں سے بھرا ہے۔ لکھا ہے 14 اس کی پہلی آیات، انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے۔ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہیں پسند تو یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں ہی آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی سے انصاف کی امید نہ رکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مصیبت زدہ ہے یا آپ میں کوئی دکھ میں ہے تو اپنی زندگی سے غور سے سنیے گا اور آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کیجیے گا، بات کو سنیے گا۔ کوئی آپ کے من میں سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو فیس ٹو فیس ہوتی ہے۔ سنیے، کیوں کھڑے ہم؟ آپ کے لیے۔ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے لیے۔ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے لیے۔ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ آپ کے لیے۔ پالوس رسول کہتا ہے ہم غریب تو ہیں، کمزور تو ہیں، لیکن بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سنیے کیا لکھا ہے، انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دکھ آپ کی زندگی کا حصہ ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ مصیبت آپ کی زندگی کا حصہ ہے جسے آپ پسند نہیں کرتے ہو۔ لیکن میں نے جو اپنا ٹاپک آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں میں ہمت نہ ہارنا، کیونکہ زبور 34 اور اس کی 19 آیات کہتی ہے کہ صادقوں کی مصیبتیں بہت سی ہیں۔ صادقوں کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن خداوند ان کو ان سب سے رہائی دے گا۔ ہاللیلویا۔ لیکن کیا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔
और आज जो हिम्मत हार कर दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, मैं खुदा की खादमा आपको पूरी गारंटी से ये बात कहती हूँ कि वो कभी भी अपनी मुश्किल से नहीं निकलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं निकलेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि साधक की मुसीबतें बहुत सी हैं, पर खुदा उन सब से उनको रहाई देता है। कौन देता है भाई? खुदा देता है। मुसीबतें बहुत है, ये आपका जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी से इंसाफ की उम्मीद ना रखो। हम जिंदगी रही तो ये मिल जाएगा, जिंदगी रही तो वो मिल जाएगा, जिंदगी रही तो जरूर इंसाफ होगा। जिंदगी से उम्मीद ना रखो, जिंदगी तो खुद धोखेबाज है, वो एक दिन छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी से उम्मीद ना रखो, रहाई पाने की उम्मीद रखनी है तो अपने जिंदा खुदा से। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हिम्मत ना हारना। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो हिम्मत नहीं हारे अपनी मुसीबत में, मुसीबतें तो आपके पास बहुत सी, दुख भी आपके पास बहुत से, और ये सोच लीजिए मैंने जो आपको बात बताई कि ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, इससे परेशान मत होइए, इसमें हिम्मत मत हारिए। आप ही दुनिया में अकेले नहीं है मुसीबत उठाने वाले, हजारों लोग इस रास्ते से, इस हादसे से गुजर चुके हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि आस्तर की हिम्मत, अगर आप आस्तर का हवाला 5 से 7 तक पढ़े तो आस्तर की हिम्मत देखिए कि वो एक शहजादी बन चुकी है, नहायत खूबसूरत है, नहायत, उसके बारे में लिखा है कि वो नहायत दलेर और जुर्रतमंद औरत है। और उसके बारे में, आस्तर के बारे में क्या लिखा है कि वो बादशाह को पसंद आ गई, बादशाह ने शादी कर दी, बादशाह ने मलका बना दिया, लेकिन बादशाह की मर्जी के खिलाफ बादशाह की हजूरी में कोई नहीं आ सकता, चाहे उसकी बेगम हो, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसकी शहजादी हो, तो वो बादशाह के हजूर बिना इजाजत नहीं आ सकती। आस्तर का जो तायाजाद भाई है, आस्तर उसके मर्दगी के चाचे की बेटी है, उसके भाई ने उसको मैसेज भेजा, अगर तू शहजादी बन चुकी है और अगर तू उस जगह की मलका बन चुकी है तो देख, ये मत भूल कि खुदा जो सब कुछ करने में कादिर है, वो बनाता और बिगाड़ भी देता है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है। पर आपको अपनी मुसीबत में हिम्मत नहीं आती। उसके जो भाई था उसने कहा, क्या लिखा है आस्तर 4:12, उन्होंने मर्दगी से आस्तर की बातें कही, तब मर्दगी ने, उसके चाचे तायजाद का भाई, तब मर्दगी ने उनसे कहा, आस्तर के पास ये जवाब लेके जाओ कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से बादशाह के महल में तू ही बची रहेगी। क्या हुआ अगर तू शहजादी बन गई, क्या हुआ अगर तू मलका बन गई, तो ये मत समझ के बादशाह तेनू भी माफ कर देगा, तू भी यहूदी है जो। हाँ, ये मत सोच कि जिसके खिलाफ तूने गलती की, खता की, वो तुझे माफ कर देगा। उसका इंसाफ एक जैसा है सबके लिए, चाहे वो जमीनी बादशाह हो, चाहे वो आसमानी। और लिखा है कि उसने कहा कि ये मत समझ कि सिर्फ तू ही बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करेगी तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से नहीं आएगी। अगर इस वक्त, इस मुसीबत के अंदर, इस परेशानी के अंदर आस्तर तू खामोश रही तो याद रख, नजात यहूदियों की तरफ से कहीं और से नहीं आएगी। यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर है, और अगर आज आस्तर ना होती तो यीशु मसीह भी ना हो। हालेलुया। ये जुर्रतमंद औरत, इसके सर पर मुसीबत क्या थी कि ऐलान कर दिया गया था कि तमाम यहूदियों को हलाक कर दिया जाएगा। तो आस्तर भी यहूदी थी। उसके भाई ने बोला ये मत सोच। और अगर आज मैं आपसे कहती हूँ,
آپ کے گھر میں مصیبت ہے، آپ کے شہر میں مصیبت ہے، آپ کے محلہ میں مصیبت ہے، آپ کے گھر کے فیملی کے خاندان کے اندر مصیبت ہے، تو اگر آپ خاموش رہے تو پھر نجات کہیں اور سے نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے خدا کا، آپ کو سمجھے خدا کی۔ آستر کو سب پتا ہے، آستر ایک دلیر ہے، اور آستر نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی، جس نے کہا کہ یہ مت سوچ کہ تو اکیلی ہی بچی رہے گی، بلکہ تو اپنے خاندان کے ساتھ ہلاک کر دی جائے گی، تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب بھیجا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کر اور میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے، تو میں بھی اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، اور میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، اور آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو میں ہلاک ہوئی، چاہے یہ قانون کے خلاف ہے تب بھی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، کیونکہ تب پہلے زمانے میں اجازت کے بغیر پہلے کچھ ہفتہ 2 ہفتہ 2 مہینے اجازت لینی پڑتی تھی، لیکن آستر نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گی اور بادشاہ کے حضور جاؤں گی، حالانکہ بادشاہ وہ اس کا شوہر ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہی ہے کہ میں اجازت کے بغیر جاؤں گی، اگر میں بچ گئی تو بچ گئی، اگر ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ آستر بنا اجازت شاہی لباس پہن کر بادشاہ کے حضور کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ نے اس کی جرات کو دیکھا کہ بنا اجازت اتنی دلیر، اتنی جرات مند، اگر آج آپ کے اندر خدا کی محبت ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کے حکم ہے، تو آپ کے اندر دلیری بھی ہونی چاہیے، اور وہی دلیری آپ کو دکھوں اور مصیبتوں سے نکالے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کیا لکھا ہے کہ آستر کہتی ہے روزہ رکھو، گریہ زاری کرو، میں جاؤں گی، اگر مر گئی تو مر گئی، کوئی بات نہیں، اور اگر جیتی رہی تو جیتی رہی۔ تو جب بادشاہ نے آستر کو دیکھا، اس کی ہمت کو دیکھا، اس کی جرات کو دیکھا، کیونکہ ان کے سر پر بہت بڑی مصیبت، نہ کہ صرف اپنے خاندان کی، نہ کہ صرف اپنی فیملی کی، نہ کہ صرف اپنے بچوں کی، نہ کہ صرف اپنے ایک قوم کی، بلکہ پوری قوم کی، یہودا پوری قوم کی مصیبت اور دکھ اس کے دل کے اندر، اور مصیبت اس کے سر پر تھی، اور وہ بنا اجازت بادشاہ کے حضور چلی گئی۔ اور بادشاہ نے، جب آپ کے اندر ہمت دلیری ہوگی تو خداوند اسی ہمت اور دلیری سے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ ہاللیلویا۔ جب بادشاہ نے آستر کی ہمت دیکھی تو بادشاہ نے کہا اتنی جرات مند اور دلیر عورت، اتنی ہمت والی، ڈری نہیں، حالانکہ بہت سخت قانون تھا، اور بادشاہ نے اپنا سونے کا جو عصا تھا وہ آستر کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ صرف اسی کی طرف بڑھاتا تھا جس کی درخواست قبول ہوتی۔ ہاللیلویا۔ بادشاہ نے آستر کی طرف اپنا عصا بڑھایا، آستر نے اپنی درخواست کی کہ میری قوم کو بچا دیا جائے، میری یہ مصیبت کو دیکھا جائے، میری یہ تکلیف کو دیکھا جائے، میرے یہ دکھ کو دیکھا جائے۔ کب تم آئے خدا کے گھر میں، کب تم حاضر ہوئے خدا کے گھر میں، کب تم جرات سے آئے خدا کے گھر میں، کب تم ہمت سے آئے خدا کے گھر میں، کب تم نے اپنا دل خدا کے حضور ادھیلا، اور کب تم نے اپنی درخواست اپنے خدا کے آگے رکھی کہ وہ نہ سنے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں بچی تو بچی، میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی، میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ کیا آپ کے اندر ہمت ہے؟ چاہے یہ مصیبت کیا ہو، میرا گھر بدنام ہو، یا میرے بچے بدنام ہو، یا میرا خاندان بدنام ہو، یا میرا پوری دنیا میرے لیے بدنام ہو جائے، میں خدا کے گھر میں جاؤں گی۔ ہاللیلویا، میں خدا کے گھر میں جاؤں گی۔ اگر یہی خدا کو منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بچی رہی تو بچی رہی، میں مر گئی تو میں مر گئی۔ اور کیا ہوا کہ بادشاہ نے ابھی پوچھا نہیں کچھ بھی، اور اس کے باوجود بھی اس کی دلیری، اس کی ہمت کو دیکھ کے اس نے اپنا عصا بڑھا دیا۔ آستر کیا چاہیے؟ آستر بولی میرا محل چاہیے، میری سلطنت چاہیے، میری دولت چاہیے، میرا مال چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ اے بادشاہ مجھے اپنی قوم کی رہائی چاہیے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مانگیے، خدا کے حضور جھک جائیے اگر آپ کو پتا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہے، اور اگر آپ ہی خاموش رہے تو خاندان کی بحالی نہیں ہے۔
हालेलुया। उसके भाई ने बोला अगर तू खामोश रही तो फिर नजात की तो नहीं आनी हूं। अगर आज तेरे खुदा ने खड़ा किया तो बोल हालेलुया। अगर आज आपको खुदा ने खड़ा किया तो बोलो, वो कहता अपना मुंह खोल तो मैं भर दूंगा। हालेलुया। अपना मुंह खोल, अच्छाई के लिए मुंह खोले। मुसीबत के दिन दाऊद कहता है कि मैंने मुसीबत के दिन खुदा को ढूंढा। 77 ज़बूर में कहता है कि मैंने मुसीबत के दिन खुदा को ढूंढा। आप मुसीबत के दिन किसको ढूंढते हो? बताइए। आप कुछ वक्त के लिए जेल में गए, पता है मुसीबत किसकी कम नहीं होगी। जरा यसु वाला झुकदा ही नहीं, जरा खुदा दे हजूर खड़ा ही नहीं होता, जरा बादशाह दे हजूर जाता ही नहीं, जरा बादशाहों के सामने खड़ा नहीं होता। मुसीबत हमेशा उसके सर पर मंडराती रहती है, तो उसका दिल दुख से भरा रहता है, फिर उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। दुख उनके लिए जाते जो खुदा के पास नहीं आते। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैंने मुसीबत के दिन खुदा को ढूंढा। किसको ढूंढते हो आप? मुसीबत पड़ जाए, चाचे के बेटे को बुलाओ, चाचे का बेटा नहीं आता तो ताए के बेटे को बुलाओ, ताया के बेटा नहीं आता तो फुफो के बेटे को बुलाओ, कोई तो आए हमारा इंसाफ करे। मैं समझती हूँ हर इंसाफ दुनियावी है, जो खुदा इंसाफ करेगा दुनिया में कोई इंसाफ नहीं। हालेलुया। मैंने मुसीबत के दिन खुदा को ढूंढा। मैं आपको बताऊं कि आपको मुसीबतों में, बहुत सी मुसीबतें हैं इंसान की, कलाम कहता है बहुत सी मुसीबतें हैं साधकों की, लेकिन खुदा कहता है मैं उन सब से रहाई दूंगा। तो सुनिए, हम एक और हवाला देखेंगे, इफिसियों 3:13, इफिसियों का खत 3:13 आया। इफिसियों का खत 3 और 13 आया। क्या लिखा है? बस मैं दुआस करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। हालेलुया। मुसीबतें क्या हैं? मुसीबतें क्या है? खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है कि मुसीबतों में हिम्मत ना हारो, वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। मुसीबतें झुकना सिखाती हैं, मुसीबतें सबक सिखाती हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करना सिखाती हैं। और पालूस रसूल 2 कुरिन्थियों 4:17 में कहता है कि ये मुसीबतें जो तुम्हें पहाड़ की तरह नजर आती हैं, ये दम भर की हैं। ये मुसीबतें जो दुनियावी है, क्या है? दम भर की। देखिए वो कितना हल्के में ले रहा है। वो दुनिया की मुसीबत को, वो इंसान की जिंदगी की मुसीबत को, वो इंसान के दुख को कितना हल्के में ले रहा है। भाई क्या हो आप? कौन हो आप? कहां से आए हो? कैसी बोली बोल रहे हो? ये खुदा का बंदा है, ये पालूस रसूल है, ये कामिल खुदा का शागिर्द है, और ये खुद खुदा है, और कह रहे हैं कि हिम्मत ना हारो। और ये मुसीबतें तो दम भर की हैं, दम भर की। ऐसी है मुसीबत कोई आपके पास? है कोई ऐसी मुसीबत? है कोई मुसीबत ऐसी? कहते हैं ये मुसीबतें तो दम भर की हैं, लेकिन खुदा की शफ़क़त अब्दुल अवाद कायम है। हालेलुया। ये खुदा की शफ़क़त अब्दुल अवाद कायम है। अनदेखी चीजों पर यकीन करो, देखी हुई चीजों पर यकीन ना करो। ये मुसीबतें तो दम भर की हैं, जिन्होंने तुसी अपने गलियां का हार बना दिता है। पालूस रसूल कहां से बोल रहा है? कौन है इसके अंदर? क्या कुव्वत है इसके अंदर? क्या तकवीयत है इसके अंदर? तो कह रहा है ये मुसीबत तो दम भर की है। खुदा की शफ़क़त, खुदा का जलाल जो अबदी है, उस पर नजर करो।
इन मुसीबतों पर गौर ना करो जो आपके घर में उठी पड़ी हैं, जो आपके घर में बनी पड़ी हैं, जो आपके दिल में बनी पड़ी हैं, जो आपके सर पर मंडला रही हैं। इन मुसीबतों की फिक्र ना करो, फिक्र करो खुदा के जलाल की, कहीं वो तुम्हारे हाथ से चला ना जाए। हालेलुया। ये फिक्रें तो दम भर की हैं। और हिब्सियों 3:13 में कहता है कि मुसीबतों में हिम्मत ना हारो, ये तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। जब बंदा कहे एक हो सकता जी मुसीबतां कि मैं इज्जत का बाइस हो सकती है ने, मुसीबतां दे विच ते इंसान शर्मिंदा होता है, होते हो ना, ऐसे होता है ना। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलना है या दुनिया के मुताबिक चलना है? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है मुसीबतों के बारे में? प्लीज सुनिए, सीखिए। रोमियो 5:3। और सिर्फ यही नहीं कि आप मुसीबत में हिम्मत ना हारे, और ये मुसीबत तो दम भर की है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, हाँ जी, और क्या, सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में फख्र करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है मुसीबतों में? हाँ, मुसीबतों में क्या करना है? फख्र कीजिए। फख्र करते हो ना? कभी कभी इंसान अपनी दौलत पर फख्र करता है, कभी कभी इंसान अपने हुस्न पर फख्र करता है, कभी कभी इंसान अपनी अकल पर फख्र करता है। खुदा का कलाम कहता है नहीं, मुसीबतों में सिर्फ यही नहीं, मुसीबतों में क्या करो? फख्र करो ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। हालेलुया। मुसीबत से सब्र पैदा होता है। अगर आज आप मुसीबत में हो तो हिम्मत ना हारो, इसका एंड होने वाला है, ये खत्म होने वाली है। आपके मुखालिफ शर्मिंदा होने वाले हैं। आपके लिए जो मुसीबतें पैदा करता है आपने खुद अपने लिए पैदा कर रखी हैं। कुछ इंसान मुसीबतें आती है तो कुछ इंसान अपने को पैदा कर लेता है। हालेलुया। वो खुश रहना ही नहीं चाहता, वो खुश नहीं रहना चाहता। इंसान है ना, इंसान को समझ ही नहीं आती। क्या सोचते हो तुम मुसीबत में हो, तुम्हारी बदनामी हो गई, तुम बिगड़ गए, तुम्हारा घर छीना जा रहा है, तुमसे लोग लूट गए, तुम्हारे पैसे को खा गया, तुम्हारे पास अभी कुछ है नहीं, तुम जलील हो रहे हो, तुम्हारे पास घर नहीं, तो कोई बात नहीं, इस पर फख्र करो। खुदा तुम्हें बहुत कुछ लौटाने वाला है, खुदा तुम्हें रहाई देने वाला है, खुदा तुम्हें आजाद करने वाला है, खुदा तुम्हें बुलंद करने वाला है, खुदा तुम्हारे जेल की सारी दरारों को तोड़ने वाला है। मगर हिम्मत ना हारना, इस मुसीबत में बने रहना, इस मुसीबत में खड़े रहना, इस मुसीबत में खुदा के एंगल से छोड़कर कहीं दूसरे एंगल में ना चले जाना। फिर क्या होगा? फिर मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी, फिर और नई बदल के शक्लें आएगी मुसीबत। क्या खूबसूरत, क्या बन कर आपके सामने आएगी कि आपकी अकल खत्म हो जाएगी, पर मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी। क्या सोचते हैं आप? बोलिए कितनी मुसीबत है भी है कि नहीं है? मैं ऐसे बोली जा रही हूँ, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि इंसान जो है, जो पैदा हो चुका है, वो मुसीबत और दुख से भरा पड़ा है। तो फिर बाइबल सच्ची है या आप सच्ची हो गई? हाँ, तो फिर कौन है मुसीबत में, कौन है दुख में? अमीर हो या गरीब, हर बंदा अपने अंदर दुख को लेके बैठा हो। कोई ना कोई दुख जरूर है। तो चलिए मेरे साथ आइए, वो शाफी, जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, जब आप उसका रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जब आप उससे दूर नहीं होंगे, तो याद रखिए आस्तर ने ठान लिया। लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि आस्तर ने ठान लिया, आज आपको भी ठान देना है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे किसी की तरफ नहीं भागना, मुझे अपनी मुसीबत में किसी को नहीं ढूंढना। दाऊद कहता है मैंने अपनी मुसीबत के दिन खुदा को ढूंढा। और जब आप पर भी ऐसा कोई मुश्किल आ जाए तो आपने खुदा को ढूंढना है, क्योंकि वो कहता है जो मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने लपड़ा ही नहीं तो उन्होंने पाना की है। हालेलुया। मैं माफी मांग के कहती, किसी का दिल दुखाने के लिए ये कलाम नहीं है, ये कलाम बरहक और सच्चा है। और बहुत सी बातें मुझे यहाँ पर आकर मिल जाती है बैठे बैठे। और खुदा का कलाम कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। याद रखिए ये मुसीबतें तो मजबूत
भी आएंगी और कमजोर पर भी आएंगी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील कहती है उसका 7:25 के ये मजबूत घर पर भी आएंगी और कमजोर घर पर भी आएंगी, पर जो कमजोर घर है वो टूट जाएगा। कमजोर घर जिन्हें की हिम्मत नहीं होएगी वो की होएगा, टूट जाएगा। मैंने पहले आपका अगर आस्था ना पड़ी होती तो आज ये सुना होता। उसने कहा कि नजात कहाँ से आएगी? उसके भाई ने कहा नजात कितों आनी हो, तेनू खड़ा होना पैना है। अगर अपने घर सपोर्ट चाहते हो, हर काम तरीके ना चाहते हो, तो आज यीशु मसीह के हजूर खड़े हो जाओ। हालेलुया। हिम्मत ना हारो, दुखों में हिम्मत ना हारो, मुसीबतों में हिम्मत ना हारो। आपको समझ है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहो कोई बात नहीं, अगर चाहता है तो अच्छा है, पर मेरा खुदा मेरे साथ वो इंसाफ करेगा। हम इनकी तरफ क्यों देखें, हम इनकी बातों को क्यों सुने? हम अपने खुदा की बात को सुनेंगे, जो उसने कहा उस पर अमल करेंगे। और बाइबल मुकद्दस देखिए, मैं आपको इस बात की आज शहादत देती हूँ खुदा की आत्मा और बताती हूँ कि चाहे वो आसमान पर है, कौन डरते बड़ा में समझ नहीं आ रही। चाहे वो आसमान पर है कौन, यीशु मसीह जो गया है वो आएगा भी। वो आसमान पर है और वो आसमान से भी चैन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसी आसमान पर भी चैन नहीं है, वो वहां पर भी बेचैन है। हर वक्त तड़पता रहता है, तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। तुसी जमीन पे रह के बेखबर हो कि एक दिन जाना है, और जिसने आना है वो कितना बेचैन है। सुनिए रोमियो 8, अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, मुसीबत में हो, तो सुनिए किस तरह से वो आपकी सिफारिश कर रहा है। घबराना नहीं है, जल्दी जल्दी आज कल दे विच जवाब मिल जाए, फटाफट तवा तपदा पे रोटियां मांग जाए खा लिए। याद रखिए वो उसकी मर्जी है, वो कब जवाब दे आपको खड़े होना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी। रोमियो 8 उसकी 25 आयत। लेकिन जिस चीज को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह को देखते रहे। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। सुनिए बोलिए, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह तौर से हमको दुआ करना हमें नहीं चाहते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिकायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। याद रखिए खुदा का रूह खुद आहें भर भर कर रो रो कर आपकी शिकायत कर रहा है। आप क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों उड़ गए? आप क्यों परेशान हो गए? आप क्यों घबरा गए? क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? करके भी नहीं कुछ कर सके। क्या कुछ किया है तो कुछ भी नहीं कर सके। क्या कर लिया बताइए मुझे, क्या कर दिया आपने? कौन सा मैदान मार दिया है? अपना आप दिखा के, अपना रास्ता बदल के, अपनी सोच बदल के क्या कर दिया? कौन सा मैदान मार दिया? कुछ भी तो नहीं कर सके। लेकिन याद रखिए वो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? वो हमारे लिए शिफायत कर रहा है, आहें कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और आपके लिए क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया। उसने जान दी है, वो सूली पे चढ़ा है, उसने खून बहाया है। कीमत से चीज खरीद के लाते हो ना, फ्रिज होती है, कितनी कीमती खरीदते हो, किसी को हाथ नहीं लगाने देते, किसी को पास नहीं आने देते। आप कहते हो वो भाई ऐसी बड़ी मुश्किल है खरीदी है, बहुत मुश्किल ने नाल मसीह बनाया है, बहुत मुश्किल से हमने एसयूवी ली है, कोई बच्चा इसको हाथ ना लगाए, उसका रिमोट कंट्रोल भी बहुत दूर रखते हो, कितनी बात करते हो। तो सोचिए कि यीशु मसीह ने, वो तो सिर्फ अपने पैसों की कमाई है, पैसे तो किसी तरह भी कमाए जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया, खून बहा के, लहू बहा के, दुख सह के, मुसीबतें उठा के, आजादी ना नहीं देता, दुख और मुसीबतें उठा के उसने आपके लिए कफारा दिया है। और आप इस बात का तहिया कर लिए ठान लीजिए,
और जितने वो दुश्मन थे जिन्होंने मारने का फैसला रचाया था आस्तर की कबूलियत पर, वो सारी यहूदा की कौम बचा दी गई और जिन्होंने मंसूबा बनाया उनको सूली पर लटकाया गया। हालेलुया। शिफायत किसने की? बादशाह ने की। दुर्खास्त किसने रखी? आस्तर ने रखी। पर खुदा ने उसकी शिफायत की और उसके मुखालफों को सूली पर चढ़ा दिया। मेरे अजीजों, आइए लास्ट में कुछ चंद बातें हैं, चंद बातों पर ध्यान करें। कलाम मुकद्दस पहला थस्सलुनीकियों उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत। पहला थस्सलुनीकियों 3 बाब और 3 आयत सुनिए कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। एक के लिए नहीं है, एक के लिए बात नहीं है, ये हम सब के लिए। सुनिए मैसेज कि इन मुसीबतों के सबब से, जो आप है अब आप जानते हो वो कौन सी मुसीबतें हैं, तरह तरह की हैं, तरह तरह के दुख हैं, आप वाकिफ हैं, पर खुदा का बंदा आपको आगाह कर रहा है। इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। सुन लिया? इन मुसीबतों से कोई ना, अगर नींद आती है तो उसको गए जाए, मुसीबतों से ना घबराए और नींद को गए जाए। इन मुसीबतों से कोई ना घबराए। और क्या लिखा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम इस मुसीबत के लिए ही बने हैं, मुकर्रर किए। अब सोचो, अब सोच लो, आप इसे शर्मिंदगी समझते हो। ओ की सोचन के साढ़े बारे, ओ की सोचन के साढ़े बारे, साढ़े रिश्तेदार की सोचन के, साढ़े मले वाले की सोचन के, साढ़े जो भी रह गए मुसीबत। अब्बा आवाज ये ऐलान है, पौलुस रसूल कहता है कि मुसीबतों में मत घबराओ, ये हमारे लिए ही मुकर्रर की गई है। हालेलुया। ना घबराओ, खुदा से हिम्मत रखो। हिम्मत रखी। क्या हमारा टॉपिक है? हाँ, मुसीबतों च हिम्मत नहीं हारनी। पंजाबी मुसीबत च हिम्मत नहीं हारनी। जे तुसी भुल जाते हो तो तुहानू असीं दोबारा दस देंगे। देखिए कैसा शख्स दलेर है। बेटी फौजिया आपके पास है वो, तो आप निकाल लीजिए लास्ट चैप्टर, सुनिएगा अय्यूब 19। जबरदस्त बातें हैं जो आज आपके साथ हो रही है। ऐसी ही बातें ये भी बंदा बयान करेगा। कितना निकाला बेटा? अय्यूब 19:9 है जी, 9 अय्यूब 19:9 सुनते जाइए बेटा, आपने बड़े आराम से पढ़ना जैसे मैं समझा सकता। ठीक है। उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली, उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली। ये बंदा बड़ा दुखी है, ये बंदा बड़ा परेशान है, इस पर इतनी ज्यादा मुसीबतें हैं कि ये बता नहीं सकता। लेकिन इसके दोस्तों ने, आसपास के पड़ोसियों ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको इतना जलील कर दिया है कि आखिरकार इसको अपना मुंह खोलना पड़ा। तो जब इसने मुंह खोला है तो कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, मैंने कोई ऐसा खता नहीं की। लेकिन अब क्या कह रहा है, जरा सुनिए, सुनिए और जरा और फरमाइए। जी, उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली उसने मेरी हशमत मुझसे छीन ली और मेरे सर से ताज उतार लिया, और मेरे सर पर से ताज उतार लिया। और उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया, और उसने मुझे हर तरफ से तोड़कर नीचे गिरा दिया। बस मैं तो हो लिया, बस मैं तो हो लिया। और मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला है। बस मेरी उम्मीद को उसने पेड़ की तरह उखाड़ डाला। ये खुदा के बारे में कह रहा खुदा ने मेरी हशमत खोली, खुदा ने मेरी खुशी खोली, खुदा ने मेरी बरकत खोली, खुदा ने मेरे बच्चे खोले और मैंने इंज उखाड़ दिता जिन्हें जड़ों समेत दरख्त उखाड़ी। और आगे क्या कहता बेटा? उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ भड़काया, उसने अपने गजब को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अय्यूब कह रहा है खुदा के खिलाफ, कह रहा उसने अपने गजब को मेरे खिलाफ कर दिया। जी बेटा, और वो मुझसे अपने मुखालफों में शुमार करता है, और उसने मुझे अपने मुखालफों में शुमार कर लिया। मैं तो उसका बंदा।
अय्यूब के बारे में लिखा है वो तो सब्र है, सब्र करने वाला। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे मुखालिफों के दरमियान जमा कर दिया। बेटा इसको पढ़ो जी। जी। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती हैं और मेरे खिलाफ अपनी राह उसकी फौजें ठंडी होकर आती हैं और मेरे खिलाफ उठती है जी। और मेरे डेरे के चुगली खबरदार होती हैं। बेटा जरा ठीक से पढ़ो, मुझे समझ नहीं आई। उसकी फौजें इकट्ठी होकर आती और मेरे खिलाफ अपनी राह इख्तियार करती और मेरे डेरे के चुगली और मेरे डेरे के जो फिर सन होती हैं, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और मेरी जान पहचान मुझसे बजाना हो। और मेरी जान पहचान वाले भी मेरे दुश्मन बन गए, मेरे रिश्तेदार मेरे दुश्मन बन गए, मेरे काटने लोग मेरे वास्ते अजनबी बन गए। मेरे खुदा ने अपनी फौजें मेरे खिलाफ भेज ली। मेरे खुदा ने, ठीक है बेटा, मेरे खुदा ने मेरे रिश्तेदारों को मेरा दुश्मन बना दिया। मेरे काटे लोग ही मैंने भूल गए, मेरे काटे लोग ही अजनबी हो गए, मेरे काटे लोग ही परदेसी हो गए, मेरे काटे लोग ही मेरे पे नक उठान लग गए, मेरे काटे लोग ही मेरे पे हाथ उठान लग गए। और वो लिखा है कि मैं अपने नौकर को भी बुलाता हूँ तो वो भी मेरी नहीं सुनता। ये कौन कह रहा है? ये अय्यूब कह रहा है खुदा के बारे में। कहता खुदा ने देखो मेरे में की कर दिया, ये मेरी हशमा छीनी, मेरे सिर का ताज छीन लिया, मेरे बच्चे खोले, मेरा घर खो लिया, मेरे रिश्तेदारों मेरा दुश्मन बनाता, मेरे रिश्तेदार अजनबी परदेसी हो गए। मैं नौकर को बुलाता हूँ, बात नहीं सुनता। अगर जब मैं मिन्नत भी करता हूँ तो मेरी सास मेरी बीवी के लिए मुकरू है और मेरी मिन्नत मेरी माँ की औलाद के लिए। और कहता है फिर आगे क्या कहता है, छोटे बच्चे भी मुझे अखीम जानते, वो कहते हैं छोटे बच्चे भी मेरी कदर नहीं करते। और लिखा है इसके बावजूद भी, लिखा है लेकिन, उसकी 25 आयत लिखे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। मेरा नजात देने वाला, जिसने मुझे पीसा, जिसने मुझे छोड़ दिया, जिसने मेरा हशमत ले ली, जिसने मेरी ताकत ले ली, जिसने मेरी कुव्वत ले ली, जिसने मेरे बच्चे ले लिए, जिसने मेरा घर ले लिया, मेरा खुदा जिंदा है। आखिरकार मैं जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बावजूद भी मैं अपने जिस्म से अपने खुदा को देखूंगा। हालेलुया। इस तरह तबाह और बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने खुदा को देखूंगा। अल्लाह देखिए वो हिम्मत नहीं हारा। इज्जत चली गई, हशमत चली गई, दौलत चली गई, सर से ताज उतार दिया, बच्चे चले गए। खुदा तो कह रहा है कि उसने सब कुछ छीना है। मुझे पता है कि मेरे खुदा ने ही सब कुछ छीना है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से अपने खुदा को देखूंगा, क्योंकि वो मेरा खुदा जिंदा खुदा है। उस पर भरोसा रखे, हिम्मत ना हारे। जिस तरह से हिम्मत नहीं हारता, बीवी को कहते हैं हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। ये तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। जिन चीजों से आपको प्यार नहीं, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हालेलुया। लेकिन इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी, इसमें आपको डोलना नहीं, इसमें आपको बने रहना है। अय्यूब की तरह मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स, मुझे दिखाओ ऐसा खानदान, मुझे बताओ आज एट के लड़ाई हो गई है। बताइए ऐसा खानदान कहाँ है, ऐसा बंदा कहाँ है जो कहता है मुझे किसी बात की परवाह नहीं, फिर भी वही खुदा, क्योंकि वो जिंदा है और मैं अपनी आंखों से देखूंगा वो मुझे बचा दे। हालेलुया। मुसीबतों में बने रहे, मुसीबतों में मत घबराए, मुसीबतों पर फख्र करे, मुसीबतों को शर्मिंदगी ना समझे बल्कि उसको अपना फख्र समझे। और अगर बताइए आप में से ऐसा कौन है, जल्दी से कितने खुश नसीब है आप में से? मुसीबत उठाने वाला कौन है और मुसीबत देने वाला कौन है? मुसीबत उठाने वाला कौन है और मुसीबत देने वाला कौन है? उठाने वाला कौन है? चले पहले वो उठाने वाला हाथ उठाए। मुसीबत उठाने वाला, मुसीबत उठाने वाला, मुसीबत उठाने वाला, मुसीबत उठाने वाला एक, मुसीबत उठाने वाला दो, मुसीबत उठाने वाले तीन, बहुत ज्यादा है। अब मुसीबत देने वाला कौन है? उस दुख देने वाला कौन? देख लीजिए, ये अच्छी बात है। देख रहे गुलनाज, आपको कोई गिला नहीं। मुसीबत देने वाला कौन है? दुख देने वाला कौन है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुख उठाने वाला मुबारक है।
हालेलुया। तुम खुश नसीब हो कि तुम दुख लेने वाले हो, दुख देने वाले नहीं। हालेलुया। कोई अगर परेशान कर रहा है तो वो आपको कर रहा है, आप तो नहीं किसी को कर रहे। तो कितने खुश नसीब हो। बोलो मुझे लोग दुख दे रहे हैं, मैं परेशान हूँ, तो मैं कितना खुश नसीब हूँ। मुझे तो फख्र करना चाहिए, मुझे दुख मिल रहा है, मेरे घर के लोग हमें सता रहे हैं, हमारा खानदान हमें परेशान कर रहा है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। आप खुश नसीब है जो दुख उठा रहे हैं, और बदनसीब वो है जो दुख दे रहे हैं। खुदा की नजर में दुख उठाने वाला मुबारक है। आमीन आमीन। जो करना अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुख के लिए हिम्मत मत हारिए, खड़े हो जाइए और अपने खुदा से दुआ कीजिए। आइए हम इन मुसीबतों के लिए दुआ करें, आइए हम इन परेशानियों के लिए दुआ करें। हम दुआ करेंगे खुदावंद के हजूर में, हम इल्तिजा करेंगे खुदावंद के हजूर में। हमें आज अपनी मुसीबत में खड़े होना है, हमें आज अपनी परेशानी में खड़े होना है।